Good afternoon, students. So, as you all know, we have read the chapter number 2, part 2 of your English literature book. ठीक है, जो part 2 था, The Shehnai of Bismillah Khan, वो हमने half cover किया था. So today we will complete this chapter and its exercises. Okay, and then we move further to the poem Wind. और उसका हम लोग आज थोड़ा सा उसका explanation भी पढ़ेंगे. ठीक है. So open your books. चलो. So come to the page number 23. Come to the page number 23. Chapter number 2, part 2. So see this page on your screen. ये चैप्टर नंबर 2 है. सबसे पहला क्या था? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. और सेकंड क्या है पार्ट इसका? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, इसका हम लोग हाफ से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. See the page number 23. हाँ, part 2, and the name of this chapter is The Shehnai of Bismillah Khan. चलो, so let's start from page number 23. पैराग्राफ नंबर 8 देखिए. 6, पैराग्राफ नंबर 6. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, जिसको अब वाराणसी कहते हैं, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. So बहुत ही अर्ली लाइफ में, बहुत ही यंग एज में बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया. व्हेन इनकी मदर जब इनको अपने मैटरनल अंकल के पास, यानी इनके मामा जी के पास लेकर गई थी, जो कि बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, जिनके साथ बिस्मिल्लाह खान जो है उनका भी इंटरेस्ट म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया. ये बिल्कुल फैसिनेट हो गए अपने अंकल्स को प्रैक्टिस करता देखकर. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to Vishnu temple. So जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को accompanying मतलब
उनको कंपनी देना, उनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड अली वर्क्स द विष्णु टेम्पल में, जो कि कहाँ पर था, ऑफ बनारस, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours no end, बहुत घंटों तक वो वहां पर बैठकर शहनाई सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day, और फिर उनको जल्दी ही प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाने लगा। For years to come, the temple of Balaji, the Mangala Maya, and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So, bank of the river Ganga, गंगा नदी के किनारे बैठकर ये प्रैक्टिस करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे रागास को इन्होंने इन्वेंट कर दिया, और कई ईयर्स तक ये कहाँ पर, बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल में गाया करते थे। वहां पर इनके बहुत सारे जो राग थे वो फेवरेट हो गए थे। सी द पैसेज नंबर 6। So at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 की एज में ये इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ आए थे। At the end of this recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, you shall make it." तो उस्ताद फैयज खान ने इनकी बैक पर पैट किया और इनको बोला कि आप और हार्डवर्क करो और आप फिर सक्सेसफुल हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. So important point है ये बच्चों, in 1938 जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ तब बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में उनको बड़ा ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio. रेडियो पर इनको काफी सुना जाने लगा। When India gained independence, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to lead the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ऐसे फर्स्ट इंडियन बने जिनको इंडिपेंडेंस डे पर 1947 को अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का मौका मिला नेशन के सामने फॉर द फर्स्ट टाइम। He poured his heart out into the rag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पर अपनी ट्रायस्ट डेस्टिनी की स्पीच भी दी थी, और वहां पर उनके सामने भी बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई प्ले किया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. The King of Afghanistan was not the only to be fascinated with Bismillah's music. सो इनका पहला, ये इंडिया में और अब्रॉड में हर जगह शहनाई प्ले करने लगे, और इनका जो फर्स्ट टूर था अब्रॉड का वो अफगानिस्तान में था, जहाँ के किंग जहीर शाह ने इनकी बड़ी तारीफ करी और इनको बहुत सारे प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दिए, मतलब बहुत कीमती कीमती गिफ्ट्स दिए, सोवरेंस दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली, सिर्फ यही अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से फैसिनेट हो गए थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से विजय भट्ट फिल्म मेकर जो थे वो भी इतने फैसिनेटेड थे कि उन्होंने इनकी शहनाई के ऊपर एक फिल्म बना दी जिसका नाम क्या था, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट
Now see this paragraph. हाँ, film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona, Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chart buster. तो इनका जो एक गाना था दिल का खिलौना है, हाँ, so I just can't come to terms with the artificiality of the glamour of the film world. Awards and recognition came thick and fast. अब इसके बाद इनको बहुत सारे awards और recognitions मिलते जा रहे थे. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. ये पहले इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए लिंकन सेंट्रल हॉल में. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosiki Ustad Bismillah Khan. इस नाम का एक स्टेडियम इनके लिए तेहरान में बनाया गया. ये इतने ज्यादा अब्रॉड में फेमस हो गए थे. National awards like the Padma Shri and Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. So इतने सारे national awards इनको दिए जा चुके थे. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. सबसे बड़ा इंडिया का जो अवार्ड है वो इनको दिया गया भारत रत्न अवार्ड. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. अपने अवार्ड को अपने चेस्ट पर लिए हुए मतलब पकड़े हुए हाथों में इन्होंने इनकी आंखों में पानी थे और बहुत खुश थे ये मतलब खुशी के आंसू थे और इन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट कल्चर. ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट कल्चर ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट दिस इज हाँ इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. जो दूसरी कंट्रीज है वो भी हमारा जो कल्चर है हमारा जो ट्रेडिशन है उसका म्यूजिक सुनने आती हैं. तो हमारे बच्चों को भी सबको ये जो ट्रेडिशन है हमको सिखाना चाहिए. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, उनको खान साहब कहा जाता था अब्रॉड में जब वो जाते थे कहीं इधर उधर, is exceedingly fond of Banaras and Darmaun, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया घूमने के बाद भी बनारस और दरमान जो जगह थी इंडिया की ये पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट जगह थी, इनके दिल के करीब थी. A student of his once wanted him to head a शहनाई school in the USA. एक इनका स्टूडेंट था जो चाहता था कि यूएसए में इनका एक शहनाई का स्कूल खोला जाए. And a student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उन्होंने उनके स्टूडेंट ने उनको प्रॉमिस किया कि आप यहाँ आ जाइए स्कूल में तो मैं आपके लिए बनारस का माहौल भी क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पर कुछ टेम्पल्स बनवा दूंगा कि आपको इंडिया की याद ना आए. बट खान साहब asked him if he would able to transport river Ganga as well. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम वहां का एटमॉस्फेयर बना देना और गंगा नदी जो है जो होली रिवर ऑफ गंगा है उसको भी यहाँ ला देना तभी मैं आ जाऊंगा. Later he is remembered to have said, फिर उन्होंने कहा that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. मैं वो बताते हैं कि उनका जो गंगा नदी बनारस और दरमान से जो लगाव है वही वजह है कि वो कहीं भी चले जाएं किसी भी खूबसूरत देश में चले जाएं लेकिन उनको इंडिया की याद हमेशा सताती रहती है. I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras.
एंड होली गंगा, जब मैं मुंबई में भी होता हूँ इंडिया की सिटी में, तब भी मैं गंगा के बारे में, बनारस के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दरमौन, और जब मैं बनारस जाता हूँ तो मुझे दरमौन के मठ की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ से आप इंडिया के रिच हेरिटेज के बारे में पता लगा ले शहनाई बजाता था मंदिर में जाके, मतलब हमेशा शहनाई बजाता था, एक मुस्लिम होकर, एक डिवोट मुस्लिम होकर भी। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 26 अगस्त। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो डेथ था वो 26 अगस्त को हो गया था। इन on in 2006 at the age of 90 after prolonged illness। 90 की एज में इलनेस के बाद इनका चलो, so that is the end of this chapter. Now see the exercises। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको टिक करना है क्वेश्चन आंसर्स पर, यू हैव टू टिक ऑन इट। हाँ, सो बच्चों जो फर्स्ट वाला देखिए आपका क्वेश्चन है, द शहनाई या फिर पुंगी वाज अ रीडेड नॉइज मेकर। तो यहाँ पर कौन टिक करना है? तो यहाँ पर बच्चों आप टिक करोगे पुंगी पर, पुंगी पर आप करेक्ट। हाँ, सो अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है वहां पर है, आपको यहाँ पे बार्बर पर टिक करना है या फिर अली बख्श बिस्मिल्लाह खान। देखो तो इसमें यू हैव टू टिक ऑन बाबर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है उसमें आपको कहाँ पे टिक करना है? म्यूजिशियंस पर, है ना? यू हैव टू टिक ऑन म्यूजिशियंस। ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको टिक करना है अली बख्श। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, एंड नेक्स्ट में, हाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, सो फर्स्ट में आपने टिक किया है, हाँ, पुंगी पर, है ना? फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पर पुंगी पर टिक है। नेक्स्ट वाले में बच्चों टिक है अली बख्श, एंड उसके बाद प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो आपका इधर है ना, थर्ड वाला, उसमें यू हैव टू टिक ऑन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। और उसके बाद क्या है? हम्म,
फिर अफगानिस्तान है। हाँ, ये जो आपका सेकंड वाला है, इसमें यू हैव टू टिक ऑन बाबर, एंड इसमें जो आपका ये है, इसमें यू हैव टू टिक ऑन अली। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट आंसर है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए क्या है आपकी। फाइंड आउट द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। इसमें देखो आपको वर्ड्स टेक्स्ट में वर्ड्स देखने हैं और आपको यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव पर टिक करनी है। चलो, सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट वाले में आप टिक करोगे बच्चों पॉजिटिव पर, सेकेंड वाले में नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव है, एंड फोर्थ में आपका पॉजिटिव है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स, इन दोनों में भी पॉजिटिव है। फिर जो लास्ट वाला है लीडिंग बनारस इन दरमोन, इसमें आप क्या फिल करोगे? नेगेटिव। चलो, तो इतना समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, यहाँ पे इतना फिल कर लीजिए। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपकी क्या है, क्वेश्चन आंसर। चलो, 30 to 40 वर्ड्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? So Aurangzeb banned the playing of the pungi because it had a shrill and unpleasant sound. फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ pungi? तो a शहनाई is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than a pungi. It has 7 holes on the body of the pipe. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है, द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स। फुल स्टॉप। उसके बाद द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। Fourth number question is, when and how did Bismillah Khan get his big break? So as you all know, Bismillah Khan got his big break with the opening of the All India Radio in Lucknow 1938. Question number 5, इसका आंसर देखिए क्या है। Bismillah Khan played the Shehnai on 15th August 1947 at the Red Fort. He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument. This event was historic because we got independence on that day. This poured his heart out in the presence of a large number of people, including Pandit Jawaharlal Nehru. Full stop. चलो, now next question number 6. इसका आंसर देखिए क्या है। He refused to start a Shehnai school in the USA because he never wanted to leave India. He loved India so much and he did not want to settle anywhere except India. That is why whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see Hindustan. Now see the seventh question. इसका आंसर क्या है? Bismillah Khan loves India and Banaras, the sound of music 197 from the bottom of his heart. He says that he misses the holy Ganga and India when he goes abroad. While in Mumbai, he thinks of only Banaras and the holy river. And when he is in Banaras, he remembers the unique matha of Dharmon. चलो, ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे एंड हुए। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको फिल करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। सो बच्चों, जो फर्स्ट वाला है उसमें आपको क्या फिल करना है, टू विन, है ना। यू हैव टू फिल टू विन इन द फर्स्ट ब्लैंक।
सेकेंड वाले में fill to succeed, and third one is to take her to a specialist. Fourth में play, and fifth में play a new raga. चलो, now let's come to the next exercise. यहाँ पर भी देखो क्या है, form the text. यहाँ पे भी आपको text को fill करना है. So first में आपका आंसर होगा royal residence. Second one is solitude. Or in the third, you have to fill an indispensable component, है ना, an indispensable component. Next, fourth one is improvise. फोर्थ में आपको करना है improvise. फिफ्थ में effortlessly, and the sixth one is thick fast. एक में आप thick fill करोगे and second में आप fast. चलो, now see the next exercise. Answer, हाँ, tick the right. आपको इसमें सही वाले पर टिक करना है. चलो, so in the first one you have to take on lives again. ये फर्स्ट वाले में लिव्स अगेन पे टिक करिए, एंड सेकंड वाले में यू हैव टू टिक ऑन स्टॉप. हाँ, सेकंड वाले में स्टॉप. फिर थर्ड वाले में आप टिक करोगे वेलकम पर. उसके बाद फोर्थ वन इज इंटरेस्टिंग, एंड फिफ्थ वाले में आप टिक करोगे फाइंड इट गुड एंड यूजफुल. सिक्स में फॉर द सेकेंड टाइम. सेवेंथ में नो लॉन्गर अपसेटेड. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर थर्ड. टिक द राइट आंसर. चलो, नाउ सी द नेक्स्ट वन. ये तो आपका हो गया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए. ये यहाँ पर भी आपको बच्चों टिक ही करना है. देखिए क्या टिक करना है. ओनली बिफोर नाउन, नॉट बिफोर नाउन, या फिर बोथ बिफोर नाउन है. बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब भी. जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं. सो फर्स्ट वाले में आपको टिक करना है नॉट बिफोर नाउन. फिर सेकेंड में अफ्रेड में, हाँ, नॉट बिफोर नाउन और बोथ पर भी. ठीक है, इसमें बच्चों ये वाला यहाँ पे नहीं होगा. इट हैज टू बी ओनली हियर. फर्स्ट वाले में होगा यहाँ पर टिक.
एंड सेकंड वाले में देखिए क्या है, अफ्रेड। अफ्रेड में यू हैव टू टेक ऑन here and there. Okay. Now आउटडोर में देखिए आपको कहाँ पर टिक करना है, आउटडोर एंड पैटर्नल। यहाँ पर एंड पैटर्नल में यहाँ पर एंड ये जो लास्ट वाला है ना इसमें भी पैटर्नल में आप यहाँ पर भी टिक करो। फिर काउंटलेस एंड प्राइसलेस। काउंटलेस में यू हैव टू टिक ऑन हियर एंड प्राइसलेस में हियर। चलो सो बच्चों दैट इज इट फॉर टुडे। इतनी जो एक्सरसाइजेज हैं इसको आप लोग कंप्लीट करिए, फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो थैंक यू ऑल, बाय बाय बच्चों। जितनी एक्सरसाइजेज है इसको आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिए, एंड जितना भी चीजें बताया है उसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। चलो बाय बाय।